కుట్ర లేదు, సాక్ష్యం లేదు, ప్రణాళిక లేదు. బాబ్రీ మసీద్ కేసులో లఖనౌ సిబిఐ స్పెషల్ కోర్టు ఇచ్చిన అత్యంత చారిత్రాత్మక తీర్పు ఇది. 28 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత 32 మంది నిందితులను నిర్దోషులుగా కోర్టు ప్రకటించింది. బాబ్రీ మసీద్ను ముందస్తు ప్రణాళికతో కూల్చివేయలేదని న్యాయమూర్తి సురేంద్ర కుమార్ యాదవ్ తీర్పు చెప్పారు. ఎల్కే అద్వానీ, మురళీ మనోహర్ జోషి, ఉమాభారతి వంటి బీజేపీ అగ్రనేతలు, సంఘ్ పరివార్ నేతలు, రామాలయ నిర్మాణ బాధ్యతలు చూస్తున్న ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్, ప్రస్తుత ట్రస్ట్ సారథి నృత్యగోపాల్ దాస్ వంటి ప్రముఖులు నిందితులుగా ఉండడంతో ఈ కేసులో తీర్పుపై దేశమంతా ఉత్కంఠ నెలకొంది. 1992 డిసెంబర్ 6న బాబ్రీ మసీద్ను కూల్చివేశారు. బీజేపీ అగ్రనేతలు అప్పుడు మసీదు పరిసరాల్లోనే ఉన్నారు. 16వ శతాబ్దం నాటి మసీదును కూల్చేలా కరసేవకులను ఉసుగొల్పారని 49 మందిపై అభియోగాలు నమోదయ్యాయి. వీరు కుట్ర పన్నారని సిబిఐ ఆరోపించింది. తాము నేరం చేశామనడానికి ఎలాంటి ఆధారం లేదని నిందితులు వాదించారు. 28 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విచారణ తర్వాత ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారందరినీ నిర్దోషులుగా తేలుస్తూ సిబిఐ ప్రత్యేక కోర్టు తాజా తీర్పు చెప్పింది. నిందితులంతా నేరపూరిత కుట్రకు పాల్పడ్డారనేందుకు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది. నిందితులపై మోపిన అభియోగాలను సిబిఐ నిరూపించలేకపోయిందని న్యాయమూర్తి అభిప్రాయపడ్డారు. సరైన ఆధారాలు లేనందున వారందరిపై అభియోగాలు కొట్టివేస్తున్నట్టు న్యాయమూర్తి సురేంద్ర కుమార్ యాదవ్ తీర్పు చెప్పారు. విచారణలో భాగంగా 351 మంది సాక్షులను సిబిఐ విచారించింది. ఈ కేసులో మొత్తం 49 మంది నిందితులు ఆరోపణలు ఎదుర్కోగా కేసు విచారణలో ఉండగానే 17 మంది మరణించారు. నిజానికి నిందితులంతా కోర్టుకు హాజరు కావాలని సెప్టెంబర్ 16న న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. అయితే కరోనా కాలంలో వయోభారంతో కోర్టుకు రాలేమని ఆఖరి నిమిషంలో అడ్వానీ, జోషి సహా 4 అర్జీ పెట్టుకున్నారు. దాంతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యేందుకు కోర్టు అనుమతినిచ్చింది. కళ్యాణ్ సింగ్, ఉమాభారతి కరోనా పాజిటివ్ కావడంతో వారు కోర్టుకు హాజరు కాలేదు. వారు కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరయ్యారు. ఇక సాక్షి మహారాజ్, వినయ్ కటియార్, ధరందాస్, పవన్ పాండే, వేదాంతి, లల్లు సింగ్, చంపత్ రాయ్లతో పాటు 26 మంది కోర్టుకు హాజరయ్యారు. హెడ్ కౌంట్ పూర్తి చేసిన తర్వాత న్యాయమూర్తి తీర్పు చెప్పారు. जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए कोई षड्यंत्र या किसी प्रकार का ऐसा आयोजन नहीं था, वो अचानक हुआ है। हमारा स्वयं का आंदोलन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम।
जी, सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन, जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। अयोध्या प्रकरण, विशेष न्यायाधीश अयोध्या प्रकरण ने सभी 32 अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी किया है और ये माना है कि जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे वो आरोप सभी गलत हैं और एविडेंस उनके खिलाफ अपर्याप्त माना है। टिप्पणी की है कि देखिए, विश्व हिंदू परिषद का या संघ परिवार का कोई योगदान नहीं था, ये ऐसे कुछ अराजक तत्वों ने ढांचा गिराया था और इन लोगों ने लगातार प्रयास किए रोकने को। 12 बजे तक स्थिति सब नॉर्मल थी, फिर पीछे से कार सेवकों ने, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी वगैरह की है और उसमें कहीं इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं था। क्राफ्ट के बारे में कहा है कि उस समय निगेटिव भी उपलब्ध थी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर्स थे वो निगेटिव प्रोड्यूस नहीं कर पाए वस्तु प्रदर्शन के रूप में और उसको सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो सब फैब्रिकेटेड थी और वो उसमें कहीं न कहीं टेम्परिंग की गई थी, तो वो भी साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता था। और सीबीआई ने 65 एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस का, प्रावधानों का पालन नहीं किया, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तगणों को बाइज्जत बरी माननीय न्यायालय ने किया। कि चाहिए आप लोग कुछ निर्दोष है। हाँ, हाँ। कितनी खुशी हुई, क्या माहौल था उस समय? बहुत माहौल ठीक है, आप लोग खुश बनाते हैं, बिगाड़ते हैं महाराज। हाँ। सब एकदम आनंद है। क्या करेंगे अब? दर्शन करेंगे हनुमान जी का, राम जी का? हनुमान जी का, राम जी के दर्शन होता। देखिए, जो बिना है उसको, उस पर भी हम लोगों का मांग है कि उसको जल्दी भी उसको हटा दिया जाए और फिर बढ़िया बने। मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, हम लोग बरी हो गए हैं। दूसरे हमने मस्जिद नहीं तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, मंदिर के खंडहर को तोड़ा है, ये सिद्ध हो गया है। विशेष न्यायालय ने, जो सीबीआई न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, मैं मेरी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। अडवाणी साहब का, मुरली मनोहर जोशी जी का, सभी का, माँ भारती जी का, ऋतंबरा जी का, सतीश प्रधान जी का, जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे और संघर्ष कर रहे थे, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी को पुनः जय श्री राम, हर हर महादेव। आज न्यायालय ने बाबरी विध्वंस का जो फैसला सुनाया, हम सब संत ही नहीं, पूरे सनातन धर्म, पूरा हिंदू इतना खुश हुआ कि उसके मुख से जय श्री राम और महादेव के अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। राम के कार्य में कोई अपराध नहीं होता है और यह घटना कोई पहले से सुनियोजित नहीं थी, जैसा माननीय जज साहब ने भी कहा है। सभी को बरी कर दिया गया, किसी कोई अपराध नहीं था। जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित थे सब ने कोई योजना बना के नहीं गए थे। यह कार्य राम का था, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने अपना काम कराया और आज के फैसले का सभी संत समाज स्वागत करता है। और एक बात कहना चाहता है, न्याय की अदालत में सत्य की जीत होती है। देखिए, पूरे राष्ट्र को बधाई, सभी को मैं बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ये सदियों से जो संघर्ष चल रहा था, आज विजय हुई है
जो कांग्रेस ने एक साजिश के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया था। బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత కేసు తీర్పును స్వాగతించారు ప్రధాన కక్షిదారు ఇక్బాల్ అన్సారీ. తాము ఈ వివాదానికి ముగింపు పలకాలని ఆకాంక్షించామన్నారు. కూల్చివేత కేసులో కోర్టు సరైన ఆధారాలు లేవని తెలిపిందన్నారు. గతేడాది ఈ తీర్పు రావాల్సిందన్నారు. जब बाबरी मस्जिद पे फैसला सुप्रीम कोर्ट ने का जो है 9 नवंबर को आ गया तो अभी अच्छी बात रही, पूरे देश के लोगों ने इसका सम्मान किया। आज जो है इसमें ये मुकदमा CBI का था, ये भी मुकदमा खत्म हो गया, अच्छी बात है। हम पहले भी कह रहे थे, आज भी कहते थे, क्योंकि 9 नवंबर को ही जो है इस मसले को ख़त्म होना चाहिए था। 1 साल लटका रहा, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। जो भी साक्ष्य गवाह जो है रहे उस जो है CBI के पास रहे, आज जो है कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, कोर्ट पे विश्वास करते हैं। अगर बरी हो गए तो अच्छी बात है, बेहतर है, होना भी चाहिए था। कई लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि जो है बरी नहीं होना चाहिए था, कार्रवाई आगे चलनी चाहिए, इस पर आपका क्या हुआ? देखिए, सारे साक्ष्य जो है वो CBI के पास थे, क्योंकि CBI जो है गवाह सबूत जो है वो जो है कोर्ट जो है सबूत मांगता है। तो जब जहाँ सबूत नहीं, कोर्ट फैसला उस जो है सबूतों के आधार पर देता है। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ था तो पूरी दुनिया ने देखा था। तमाम मुकदमे जो है पत्रकारों ने दर्ज कराए थे, दुकानदारों ने कराया, तो आम लोगों ने कराया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, अच्छी बात है। हम तो जो है विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं अगर विवाद खत्म हो गया है तो बेहतर है। కోర్టు తీర్పుపై మజ్లిస్ అధినేత అసద్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అందరూ నిర్దోషులైతే మసీదును ఎవరు కూల్చారని అసద్ ప్రశ్నించారు. మసీదును ఎవరు కూల్చారో ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసని వ్యాఖ్యానించారు. हर कोई आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा जो भारत के संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला CBI कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों। బాబ్రీ మసీద్ కూల్చివేత కేసులో CBI ప్రత్యేక కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును తాము ముందే ఊహించామన్నారు ఇమాం అసోసియేషన్ చీఫ్ మౌలానా సాజిద్ రషీద్. అన్ని సాక్ష్యాధారాలు నిందితులను స్పష్టంగా చూపిస్తున్న ఆధారాలు లేవనడంపై అన్యాయమన్నారు. తాజా తీర్పుతో కోర్టులపై నమ్మకం సన్నగిల్లుతోందన్నారు. రజా అకాడమీ అధినేత మౌలానా షాహిద్ నూరీ కూడా కోర్టు తీర్పుపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. बाबरी मस्जिद इनलीगल टूटी है, ये सब मानने के बाद वो जगह जो रामलला को दे दी गई थी, राम मंदिर को दे दी गई थी, तो ये तो फैसला आना ही था। इसी की अपेक्षा की जा रही थी कि यही फैसला आएगा। जो फैसला अक्टूबर में आया था वो भी हमारे लिए बड़ा शौक कर देने वाला था, और आज जो फैसला आया है वो भी बड़ा हैरान कुन है,
क्योंकि देखिए सारे एविडेंस होने के बावजूद पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा है कि बाबरी मस्जिद को कैसे तोड़ा गया, कार सेवा लेकर कौन गया, कौन कौन लोग उसकी अगुवाई कर रहे थे, कौन कौन लोग जो है लोगों को भड़का रहे थे, भड़काकर वहां पहुंचाने का काम कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे, 40 करोड़ या 50 करोड़ का चंदा भी इसके नाम पर हुआ। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन उन तमाम चीजों को नकारते हुए जज साहब ने जो एक फैसला दिया है तो ये बड़ा हैरानकुन है। उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो आस्था थी कोर्ट के अंदर, जो आस्था थी हमारी जुडिशियरी के अंदर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हमें दिख रही है। जांच एजेंसी वगैरह ये तो सब जो कुछ भी है जो इकबाली मुजरिम कहते हैं कि मैंने ये जुर्म किया है, मुझको फक्र है, उसको भी छोड़ देना यानी बात समझ से बालातर है कि ये कैसे हो गया। सबूत तो पूरी दुनिया ने देखा, ये वो जितने लोग थे ये खुद वहां पर मौजूद थे और बिल्कुल ये आंख में धूल झोंकने वाली बात है। ये खुद वहां पर मौजूद थे, इनकी सरपरस्ती में काम हुआ। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये बिल्कुल इन लोगों ने बाकायदा तहरीक चलाया और दुनिया देख रही है। अब अल्लाह मालिक है, देखिए क्या होता है। एक आखिरी फैसला जो है वो अभी बाकी है, यानी आखिरत का वो फैसला बाकी है। जालिम को जुल्म की सजा यहाँ नहीं तो वहाँ जरूर मिलने वाली है।